है क्या? लाइफ प्रोसेस जानने से पहले हम ये समझे कि लाइफ क्या है और किसको हम लिविंग कहेंगे. व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग? अगर आपसे कुछ क्वेश्चन किया जाए कि बेंच, टेबल, रनिंग डॉग, ए चाइल्ड क्राइंग ऑन द रोड, इस सब में से कौन लिविंग है? तो नो डाउट योर आंसर विल बी रनिंग डॉग, ए क्राइंग child. Here a question rises in our mind. What are the criteria? On this criteria, you have decided that barking dog, crying child are living, but bench, desk, table are not living. In my opinion, some ideas have come in your mind that this idea क्या हो सकता है? ये आइडियाज क्या है? तो मेरे ख्याल से ये आइडियाज जो आया होगा, perhaps you have thought that living things moving because dog is running on the road, boy is crying. Some moment that living things move, but non-living things do not move. But I ask a question. Bus, moving bus, truck, motorcycle are also running on the road. Then can you say they are living? No. Then this criteria that moving is not only sufficient to decide a thing is living or non-living. Then your next idea may be living things breathe and non-living things do not breathe. You have seen chest movement in dog or a sleeping man, chest movement during breathing. And on this movement, chest movement, you say that a sleeping man or a dog are living. But have you seen any chest movement in the plant or trees? Breathing, you can't see breathing in the plant. Have you ever seen movement, chest movement in a plant? Surely you are not. Then how can you decide plant is living? So only breathing or respiration is not sufficient to define a living. Next idea, your next idea may be growth. Growth. You will say that growth occurs in living being, but non-living things do not grow. But you have seen many things that they grow in the size, some chemical substance. When you put magic marble
आपने मैजिक मार्बल देखा होगा, जब उसको पानी में डाल देते तो बड़ा बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है। आपने हिमालय पहाड़ के बारे में सुना हो, हिमालय पहाड़ का हाइट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। इस तरह से बहुत ऐसा चीज है, नॉन लिविंग है और ग्रोथ होता है। तो यहां पर यह आपका आइडिया सिर्फ ग्रोथ या हम सिर्फ रेस्पिरेशन या बॉडी मूवमेंट कहेंगे तो ये सब सिंगली जो है डिफाइन नहीं कर सकता है। Someone said that living things reproduce. Yes, living things reproduce means produce their young ones, but non-living things do not reproduce. It is also a criteria. But the most important criterion is that molecular movement that take place only living things. जैसे सपोज करो कि आप अगर एक बस के इंजन में आप टंकी में तेल डालते हैं, वह डीजल या पेट्रोल वह कहां तक पहुंचता है? वह इंजन तक, जहां वह कंबशन होता है, उसका ऑक्सीजन के हेल्प से वो पेट्रोल या डीजल जलता है, एनर्जी रिलीज होती है, बस चलती है। लेकिन यह डीजल पेट्रोल बस के प्रत्येक पार्ट में नहीं जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में यह मोलेकुलर मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन लिविंग थिंग्स में मोलेकुलर मूवमेंट होता है। वेरियस काइंड्स ऑफ मोलेक्यूल्स रन थ्रू आउट योर बॉडी। Plants absorb water, minerals. These molecules move from root to leaf of the plant. So molecular movement is the most important criterion that take place in living things, but it does not occur in non-living things. So, we can define the living things on this basis, means movement, respiration, growth, transport, यानी जिसको हम बॉडी हमने कहा रिप्रोडक्शन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मोलेकुलर मूवमेंट। शायद समझ में आ गया हो मोलेकुलर मूवमेंट, क्योंकि आपके बॉडी में भी बहुत सारे मोलेक्यूल्स एक पार्ट से दूसरे पार्ट चलता है। जैसे आप अगर एक शुगर का दाना भी खाते हैं, जो आप खाते हैं, पानी पीते हैं, वो सारे मोलेक्यूल्स आपके बॉडी में और प्रत्येक सेल में पहुंचता है। इसका मूवमेंट होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। अब सवाल यह आता है कि लिविंग थिंग्स कहेंगे किसको? तो जिन चीजों में ये जो प्रोसेस हमने बताया, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, मोलेकुलर मूवमेंट होता है, वह सब लिविंग बीइंग्स है। और उनमें जो ये प्रोसेस चल रहा है, इसी के कारण उसमें लाइफ है, तो हम कहते हैं कि लिविंग है। लेकिन लिविंग क्या हर समय रहता है? क्या ये लिविंग बीइंग्स जो है इमॉर्टल है? नहीं, इनका एक लाइफ स्पान है। यह लाइफ स्पान नेचुरल, इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, एक्सीडेंटल डेथ नहीं। कोई रोग से, बीमारी से मर जाता है, उस डेथ को हम नहीं कहेंगे लाइफ स्पान। कोई बच्चा पैदा होता है, 10 साल के बाद अगर मर जाता है तो उसका लाइफ स्पान 10 साल नहीं कहलाएगा। लाइफ जनरल जो लाइफ स्पान जो होगा वह बर्थ टू
नेचुरल डेथ। ये बीच का पीरियड लाइफ स्पान है, और जिन चीजों में यह सब प्रोसेस चलता है जिसको हमने बताया है, इसको हम कहते हैं, जीव को प्रोसेस चल रहा है तो हम कहेंगे लिविंग है। तो लिविंग, तो अगर यह क्वेश्चन किया जाए कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर बीइंग लिविंग, तो हमने बताया ये जो क्राइटेरिया, ये जो है लिविंग होने का है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता है। अब लाइफ प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो ऑल दोज प्रोसेसेस, या हम कह सकते हैं ऑल दोज जनरल प्रोसेसेस दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। All those process लाइफ प्रोसेस है। इज इट क्लियर? लाइफ प्रोसेस समझ में आ गया आपको? अब लाइफ को मेंटेन करने के लिए इन प्रोसेस की जरूरत है। ये प्रोसेस जनरली ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन। ये जो लाइफ प्रोसेस है इसमें से हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन, मेन यही है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रेशन, ये लाइफ प्रोसेस है। दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। अब यह क्वेश्चन आता होगा कि लाइफ जो है मेंटेन कैसे होता है, कि हम फूड लेते हैं जबकि नॉन लिविंग थिंग्स कोई फूड नहीं लेता है। यानी जीने के लिए जरूरत है फूड लेने के लिए। फूड, अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि तुम क्यों खाते हो, तो सर यह क्वेश्चन होगा कि एनर्जी प्राप्त करने के लिए। एनर्जी कहां से प्राप्त करते हैं? फूड से। तो ये फूड जो है लेता कहां से? ये फूड बनता है किन चीजों से? तो लाइफ को मेंटेन करने के लिए फूड की जरूरत है, और ये फूड आता कहां से? क्वेश्चन यहां है। तो जनरली किसी भी तरह का हम फूड खाते हो, फूड का जो पहला जो सोर्स है वो हमारा एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट से लेते हैं। यू नीड फूड, प्लांट्स मेक फूड फ्रॉम द नेचुरल सबस्टांसेस। इनऑर्गेनिक मैटर को वह ऑर्गेनिक मैटर में प्लांट कन्वर्ट करता है लाइट के प्रेजेंस में। यू टेक वाटर फ्रॉम द एनवायरमेंट,
You take oxygen from the environment. यानी हम अपने एनवायरमेंट से जो रॉ मटेरियल फूड बनाने के लिए एनवायरमेंट से लेते हैं। अब कैसे लेते हैं? क्वेश्चन यह है कि हम हाउ कैन यू टेक, हाउ कैन प्लांट्स टेक दिस रॉ मटेरियल? There are two processes. Perhaps you know, diffusion and osmosis. Diffusion. What is diffusion? The molecular movement of the molecules from region of higher concentration to lower concentration. ये जो है डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें कोई टिश्यू नहीं है, कोई ऑर्गेन्स नहीं है, ऑर्गेन सिस्टम नहीं है, कैसे लेता है? तो आपने सुना होगा सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जिससे कुछ मटेरियल का एग्जिट और एंट्री हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। need exchange CO2 and oxygen by डिफ्यूजन। अब सवाल यह है, क्या डिफ्यूजन हमारे शरीर में भी होता है? क्या हम भी जो मटेरियल है अपने रिक्वायरमेंट के लिए वो डिफ्यूजन के द्वारा ही लेते हैं? Surely multicellular organisms are not capable to get their requirement by the process of diffusion. First of all, diffusion is a very slow process. यह very slow process है। अगर हम अपने अंगूठा से, सपोज कीजिए अंगूठा से अगर हमारे ब्रेन तक वो ऑक्सीजन आने में समय लगेगा, को पता है 2.5 साल। तो क्या जब हम ऑक्सीजन के बिना 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते हैं, तो फिर 2.5 साल कैसे जिंदा हो? ये संभव नहीं। The other reason is that all the cells of multicellular organisms are not in contact with the surrounding. The other reason is that all the
cells of multicellular organisms are not in contact with the surroundings. So diffusion is not sufficient. Diffusion is not sufficient for multicellular organism, but unicellular organism can take oxygen and give out carbon dioxide by the process of diffusion. Is it okay?